हम लोग आज जो वर्कशॉप के अंदर वी विल बी सॉल्विंग सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई ट्राई कि हम लोग मैक्सिमम जो सिलेबस है उसको कवर कर सकें, उसके कंटेंट को। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एसआई बेस यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज। सो देर आर 7 एसआई बेस यूनिट्स जो आपको याद होने चाहिए, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। सो कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज है? सो बेस क्वांटिटीज हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लाइट इंटेंसिटी, and amount of substance. Amount of substance. So these are your 7 base quantities, and we need to remember their SI units. Length ka base unit is meter. We denote it with small m. Mass ka it's kilogram. We denote it with kgs. Time is second. Small s. Temperature is in Kelvin. Capital K. Current is in ampere. Capital A. Light intensity is candela. CD. And amount of substance is mole. Okay, so these are your 7 base quantities and their SI units. Okay, now starting off with question number 1. Question number 1 may it states define pressure. So pressure is defined as force per unit area. So मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, if you remember the formula, it's easier for you to remember its definition. So pressure is defined as force over area or force per unit area. Use your answer to A1 to show that SI base units of pressure is this. So pressure का formula होता है pressure is equals to force over area. Now force का formula होता है in terms of base quantities mass into acceleration, ma, और area is just a. mass का SI यूनिट होता है kg, acceleration का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ms to the power of -2, और एरिया जो होता है इट्स मीटर स्क्वायर. नाउ इफ यू सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे आप इंडिसेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो m और m दोनों ऊपर मीटर है, बेस सेम है, पावर्स डिवाइड हो रही हैं, तो दिस विल बी 1 - 2, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सो इट्स गोइंग टू बी kg m to the power of -1 s to the power of -2. In part B, a horizontal pipe has length L and a cross-sectional area of radius R. A liquid of density ρ flows through the pipe. The mass m of liquid flowing through the pipe in time t is given by this expression, where P1, P2 are the pressures at the ends of the pipe and K is a constant. Determine the SI base units of K. So we have to find the SI base unit of this K. Okay. अब अगर आपके पास एक फॉर्मूला गिवन है, तो सबसे पहले if you have to find out the base unit of any expression, तो you can ignore the constants and you can, जिसका आपने base unit find करना है, make that variable as a subject of the expression first. So pi is a constant, आप pi neglect कर दोगे. 8 is a constant, it's a number, it's a numerical value. तो
you can neglect that. Now, if I have to make K as the subject, तो K और M की जगह अगर मैं स्वैप कर दूं तो K is equal to P2 minus P1 or to the power of 4 rho T whole divided by M L. Now, P stands for what? P1 and P2 are the pressures at the end of the pipe. अच्छा देखो बेटा, अगर आपके पास दो लेंथ्स हैं, एक 15 मीटर की लेंथ हो और एक 12 मीटर की लेंथ है, और अगर आप लेंथ्स का डिफरेंस लोगे तो आपके पास 3 मीटर आता है, तो यूनिट उसका सेम रहेगा। तो P2 माइनस P1 का जो एसआई यूनिट है वो हमने जो प्रेशर के लिए कैलकुलेट किया है, केजी एम पावर -1 एस की पावर -2, और क्या है, एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस आर। रेडियस लेंथ इन सबका यूनिट बेस यूनिट है मीटर, और आर की पावर में 4 है, तो यहाँ पे m टू द पावर ऑफ 4। नाउ रो इज व्हाट? रो इज द डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास इज इन केजी, वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, तो इसका ओवरऑल यूनिट बन जाता है केजी एम टू द पावर ऑफ -3 होल डिवाइडेड बाय मास। m is your mass, m का यूनिट आ गया kg, l is the length of the pipe which is also in meter. Now you have to simplify your expressions. अब ऊपर भी kg की पावर 1 है, इधर भी, सो आप या तो ये वाला kg इस kg से कट कर दो। Now you have to simplify your expression. अब we are just left with kg। अब m की पावर ऊपर -1 एक ये है, एक ये है, एक ये है, सो m पावर्स ऐड करनी है, -1 +4 +-3, और जो बेस में आपके पास पावर है वो आप सब ट्रैक कर दोगे, और ऊपर रह जाएगा s की पावर -2 7। Now you can just simplify your expression. So it's going to be kg m to the power of 4 minus 3, it's 1, 1 minus 1 is 0, तो ये -1, और s की पावर -2। So this is your simplified expression. तो अगर आपसे वो 3 मार्क के अंदर कोई ऐसे बेस यूनिट फाइंड करने के लिए कह देता है, तो बेटा आपने सबसे पहले जिस वेरिएबल का बेस यूनिट फाइंड करना है, मेक दैट वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट। तो k का फाइंड करना है, मैंने k को सब्जेक्ट बना लिया है। फिर हर वेरिएबल को आपने सेपरेटली देखना है कि इसका बेस यूनिट क्या है। तो अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो सेम है और अगर आप उसको डिफरेंस या ऐड करते हो, तो आफ्टर डिफरेंस उसका जो बेस यूनिट है वो सेम रहता है। सो प्रेशर का बेस यूनिट ये, r is the radius, m की पावर 4, फिर डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, kg m की पावर -3, और फिर टाइम का, अच्छा टाइम का यूनिट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, टाइम का यूनिट इज सेकेंड। अब बेसिस सेम है तो आप पावर्स ऐड कर दोगे, तो इट्स गोइंग टू बी -2 +1, तो ये s की पावर में यहाँ पे -1 आ जाता। Okay, so this is your final answer. An experiment is performed to determine the value of k by measuring the values of the other quantities in the equation in part B. The values of L and R each have a percentage uncertainty of 2%. So he is talking about the values of L and R. So using this expression, state and explain quantitatively which of these two quantities
contributes more to the percentage uncertainty in the value of k. ओके अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन है और आपसे वो परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ के तो आर की पावर में 4 है तो अगर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी लेते हो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ के तो जो पावर में जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ आर ठीक है प्लस एल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 क्योंकि इसकी पावर 1 है तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ एम तो उसने आपसे ये कहा है कि the values of L and R each have a percentage uncertainty of 2%. So percentage uncertainty of R is 2% and percentage uncertainty in the value of M is also 2%. तो percentage uncertainty of R जो है वो 4 times ज़्यादा contribute कर रहा है ठीक है so percentage you can simply write percentage uncertainty of R contributes 4 times more than percentage uncertainty oh, L. We were talking about the L. So it contributes 4 times more than the percentage uncertainty of L. Okay? So basically एक्सप्रेशन में R की पावर में 4 है L की पावर में 1 है सो पावर में 4 होने का मतलब ये है कि R जो है वो 4 times ज़्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है कंपेयर टू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ L. Okay, so this is your first question. Now for question number 2, we have make an estimate of the mass in kg of a wooden meter rule. So अब आपके पास नोट्स के अंदर मैंने लिखवाई हुई हैं आपको estimated quantities के you have to remember the values for those. तो आपके पास जो मीटर रूल है ठीक है उसका मास यूजुअली 100 ग्राम्स होता है ठीक है 100 से 200 ग्राम्स के बिटवीन 100 ग्राम से 200 grams. Now, since you have to give the value in kilograms, so 100 divided by 1000 is 0.1 kg से 0.2 kg. तो आप 0.1 kg भी दे सकते हो यू कैन ऑल्सो राइट 0.15 kg मतलब 0.1 और 0.2 के बिटवीन द वॉल्यूम इन cm cube of a cricket ball or a tennis ball. So क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल का जो वॉल्यूम है इट वेरीज फ्रॉम 100 cm cube टू 300 cm cube so you can write down the value 200 cm cube. So ये estimated quantities जो मैंने लिखवाई हुई हैं you'll have to memorize those values. Part B, a metal wire of length L has a cross section of diameter D as shown in figure 1.1. The volume V of the wire is given by the expression this. The diameter length and mass M are measured
to determine the density of the metal of the wire. The measured values are D, L, and M. So their measured values are given to us. Now calculate the density of the metal with its absolute uncertainty. Give your answer to an appropriate number of significant figures. So we have to calculate the density with its absolute uncertainty. Give your answer to an appropriate number of significant figures. Okay, so इसका mass जो है, mass is m, और इसका वॉल्यूम का एक्सप्रेशन उसने हमें दिया हुआ है. ठीक है, सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. अब सिंस द मास इज डिनोटेड एज कैपिटल एम, तो मास की जगह मैं कैपिटल एम लिख लेता हूं और वॉल्यूम की जगह कैपिटल वी. अब वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है वो मैं इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूं. पाई डी स्क्वायर एल ओवर 4. अगर फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाता है तो ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई. सो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन 4m ओवर पाई डी स्क्वायर एल. अब ये जो स्मॉल m है, दिस स्मॉल m मीन्स मिली, और मिली के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू विथ 10 की पावर -3. और अगर आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? यू हैव टू डिवाइडेड बाय 100, और ग्राम्स को केजी में करने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड बाय 1000. नाउ मास की जगह, मास की एक्चुअल वैल्यू है 0.225. सो 0.225 डिवाइडेड बाय 1000 होल डिवाइडेड बाय पाई. डायमीटर की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 0.38. 0.38 टाइम्स 10 की पावर -3. और क्योंकि इधर डायमीटर पे स्क्वायर है तो यू विल पुट अ होल स्क्वायर ऑन इट. देन लेंथ की जगह, लेंथ है 25 सेंटीमीटर. सो लेंथ आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 100. अब आपने एक दफा अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन पुट कर लिया है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्चुअल वैल्यूज लिखूं तो 0.38 मिलीज में है, तो मल्टीप्लाइड विद 10 की पावर -3. 25 को मैंने 100 से, और 0.225 ग्राम्स में था तो डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम्स. अब आपने ये पूरा एक्सप्रेशन डेंसिटी का एज इट इज कैलकुलेटर में पुट कर देना है. ठीक है, अच्छा, कैलकुलेटर में आपके पास जो वो ये वाला फंक्शन होता है ना, जिसमें आप एक्सप्रेशन डायरेक्टली फ्रैक्शंस में लिख सकते हो, प्लीज यूज दैट एंड बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इनटू योर कैलकुलेटर. इस पूरे को व्हेन यू आर गोइंग टू सिंप्लीफाई, सो लेट्स से ये राउंड ऑफ करके मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है दैट इज 7940. So kg per meter cube. Okay, so ये तो मेरे पास आ गई डेंसिटी. Now we have to find the absolute uncertainty in the value of density. Give your answer to an appropriate number of significant figure. अब बेटा, when you have to find the absolute अनसर्टिनिटी, तो एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी निकालने के लिए आपके पास एक तो मेथड ये है कि या तो आप पहले तीनों की परसेंटेज अनसर्टिनिटी कैलकुलेट कर लो. ठीक है, सो अगर मैं लेट्स से तीनों की
परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालता हूं, अनसर्टिनिटी, तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी अगर मुझे डी की निकालनी है तो डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100, तो डेल्टा डी इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.38 टाइम्स 100, तो यहां से आपके पास क्या निकल आएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ डी। तो ये कितनी आती है, लेट्स जस्ट क्विकली, 0.01 ओवर 0.38 टाइम्स 100, तो ये आ रही है 2.63, 2.63%। अब इसी तरह अगर मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी एल की निकाल लूं, तो एल की आ जाएगी मेरे पास 0.1 ओवर 25। अच्छा बेटा, अगर तो आपने जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हो ना, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट देम इनटू द बेस यूनिट्स, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ऊपर भी सेंटीमीटर ले रहे हो नीचे भी सेंटीमीटर, तो वो वैसे ही कैंसलेशन हो जाती है यूनिट्स। 0.1 over 25 times 100, so we get 0.4%। एंड इसी तरह डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100, सो डेल्टा एम ये है और ये एम की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.001 डिवाइडेड बाय 0.225 times 100, so how much, 0.001 divided by 0.225 times 100, we get 0.444%। अब आपके पास ये तीनों की परसेंटेज अनसर्टिनिटी आ गई है। सो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ रो विल बी इक्वल टू, अब जब आप परसेंटेज अनसर्टिनिटीज कैलकुलेट करने लगते हो, तो मैंने आपको पहले बताया कि यू कैन इग्नोर 4 एंड पाई जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। तो m जो है परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ m प्लस d की पावर में 2 है, तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ d प्लस परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन द वैल्यू ऑफ l, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि d की पावर में 2 है। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन m इज 0.444 प्लस 2 टाइम्स 2.63 plus percentage uncertainty in the value of L is how much? That is 0.4। तो अगर आप इस सारे को सॉल्व कर लेते हो, सो आपके पास ये आ जाता है 6.1%। अब बेटा परसेंटेज उसने आपसे एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ था। So percentage uncertainty in the value of rho is equal to delta rho over rho times 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 6.1 और डेल्टा रो की, अच्छा 0.444 प्लस 2 टाइम्स 2.63 प्लस 0.4, ये आपके पास 6.104 आता है। तो 3 सिग्निफिकेंट में आपने अपनी वैल्यूज कंसिडर कर लेनी है। डेल्टा रो निकालनी है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, और रो की वैल्यू आपने निकाली थी 7940 टाइम्स 100, ये उधर जाके मल्टीप्लाई और 100 डिवाइड हो जाएगा, 7940 डिवाइडेड बाय 100, सो यहां से आपके पास 6.1 टाइम्स 7940 डिवाइडेड बाय 100, सो ये आपके पास आता है 484। ओके, अब उसने आपसे ये कहा है कि कैलकुलेट डेंसिटी विद इट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब देखो बेटा, आपके पास d की जो वैल्यू है दैट इज गिवन टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, l की और m की जो वैल्यू है वो 3 सिग्निफिकेंट में है। दिस इज 3SF एंड दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर,
एंड डी की वैल्यू जो है वो टू टू सिग्निफिकेंट में है। अच्छा, ऑल्दो एल की वैल्यू को भी हम मतलब वी कुड हैव कंसिडर्ड। अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो आप डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू दोनों ही क्या कहते हैं 3SF में ले लो, या दोनों ही टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो 7940 को अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं तो दैट इज गोइंग टू बी 7900। ओके, सो ये मेरे पास आती है इसकी वैल्यू 7900 if I round it off to टू सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा नॉन जीरो नंबर से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब 484 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो आई कैन राइट इट एज 480। अच्छा, यस, अनसर्टिनिटी जो है, अनसर्टिनिटी को हमने टू सिग्निफिकेंट में नहीं राउंड करना। रीजन उसकी, आपके पास तीनों जो इसकी अनसर्टिनिटीज गिवन है वो कितने में गिवन है, वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में गिवन है। सो दैट इज वाई मैं 484 को भी वन सिग्निफिकेंट फिगर पे अगर राउंड ऑफ करूं तो पहले पे 4 है, 4 से अगला 8 है, तो ये राउंड ऑफ होके 500 हो जाएगी वैल्यू। ओके, सो थैंक यू। So this is how you have to solve a question for an uncertainty. सबसे पहले आपने एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए उसका एक्सप्रेशन निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह जो एक्सप्रेशन गिवन था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर जो वैल्यूज गिवन थी, यू हैव टू कन्वर्ट दोज वैल्यूज इन बेस यूनिट्स। तो मैंने m की वैल्यू ग्राम्स में थी, डिवाइडेड बाय 1000 कन्वर्टेड इनटू केजीज। फिर d मिलीमीटर में है तो मल्टीप्लाई इट विथ 10 की पावर -3। और l जो है वो सेंटीमीटर में है तो डिवाइडेड बाय 100। ये एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू निकल आई। फिर आप इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज तीनों की निकाल सकते थे, d की, l की, m की। तो उसके लिए यू डोंट नीड टू कन्वर्ट देम इनटू बेस यूनिट्स। तो मैंने तीनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज निकाल ली। फिर मैंने एक्सप्रेशन में आई कैन इग्नोर द कॉन्स्टेंट्स, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रो इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन m प्लस, पावर में अगर 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को। अगर अंडर रूट में है पावर तो पावर आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ l। आपने ये पुट की, फिर उसके बाद आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला यूज करके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर लेनी है। Okay, so this marks the end of your chapter 1, physical quantities and SI base units. Now let's just quickly talk about kinematics में projectile motion. A steel ball is projected horizontally from the top of a table as shown in figure 2.1. अच्छा बेटा, at any point if you don't understand anything, please feel free to ask. आप मुझे मैसेज कर दो, so I'll respond back to you then. Okay, so आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आपने हॉरिजॉन्टल सेपरेट डील करना है, वर्टिकल मोशन या वर्टिकल कंपोनेंट्स को सेपरेट डील करना है। अब जब भी आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो बेटा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, दैट स्टेज द सेम, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर बॉल इधर सेंटर में भी है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है,
चेंज क्या हो रहा होता है? वर्टिकल कंपोनेंट. सो वर्टिकल कंपोनेंट जो है that is constantly changing. And since you throw the ball horizontally, तो हॉरिजॉन्टल में उसका जो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो जीरो. अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, टेक्निक बताई थी कि आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दो सेपरेट कॉलम्स बना लेने हैं. हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सिर्फ तीन चीजें होती हैं: स्पीड, डिस्टेंस और टाइम. वर्टिकल में सुवैट आ जाता है, SUVAT, सुवैट. अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन है 4.9 मीटर पर सेकेंड. ये जो 180 सेंटीमीटर है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं. ये आ जाता है 1.8 मीटर. अब मुझे टाइम नहीं पता, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पीड पता है, जीरो. अच्छा, अब मेरे पास टाइम इजीली निकल सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. और वर्टिकल के लिए तीन इक्वेशंस हमारे पास यूज होती हैं: v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. तो ये थर्ड है, ये सेकंड और ये फर्स्ट. ठीक है. अब उसने हमें कहा है कि वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. तो अगर मैं t और स्पीड को स्वैप कर दूं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 1.8. स्पीड कितनी है? 4.9. तो 1.8 डिवाइडेड बाय 4.9. सो हमारे पास ये टाइम कितना निकल आएगा इसका? So the time is going to be, let me divide it, 1.8 divided by 4.9. So we get 0.367 seconds. ठीक है. So ये हमारे पास 0.367. You can round off the final value to two significant figure or three. अच्छा, calculate the vertical component of the velocity of the ball as it hits the ground. सो अब आपसे वो ये कह रहा है कि जब ये इसको हिट करता है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट. अब देखो, टाइम तो सेम लगना है. टाइम हमने निकाला है 0.367 सेकेंड्स. तो यहां पे मैं टाइम पुट कर देता हूं. अब क्योंकि ऊपर से जब नीचे वर्टिकल में हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब मुझे निकालना v है. u, a और t पता है, तो आई विल यूज दिस. v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. u आ गया जीरो, एक्सेलरेशन है 9.81. t की जगह अब मैं राउंडेड ऑफ वैल्यू नहीं यूज कर सकता, मैं 0.367 इस्तेमाल करूंगा. तो 9.81 टाइम्स 0.367, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस. 3.6 मीटर पर सेकेंड. यूनिट अगर ऑलरेडी गिवन है तो यू डोंट नीड टू राइट डाउन द यूनिट. सो अभी हमने v भी निकाल ली है, 3.6 मीटर पर सेकेंड. अच्छा, अगर आपसे वो ये क्वेश्चन में इनकेस कह देता है कि कैलकुलेट हाइट, हाइट ऑफ बॉल above the ground, calculate height from which ball is thrown.
तो अगर तो बेटा हमें हाइट भी कैलकुलेट करने को, तो बेसिकली हाइट निकालने का मतलब ये है कि वो आपसे ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है कि ये बताओ ये कितना है। तो एच निकालना है अब हमने। अब आपके पास यू कैन आइदर यूज फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, इट्स टोटली अप टू यू। तो अगर आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ओके सो बेटा, आई होप रिकॉर्डिंग वगैरह, यस, ओके। सो बेटा सबसे पहले आपके पास जब भी कोई प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आएगा तो आपने दो कॉलम्स बना लेने हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में तीन चीजें होती हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। वर्टिकल में SUVAT, SUVAT. S stands for displacement, U is the initial speed, V is your final speed, A is the acceleration and T is the time. हॉरिजॉन्टल स्पीड हमें दी हुई है 4.9 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आ गई 4.9। डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हमें दिया हुआ है 1.8 मीटर। टाइम हमें गिवन नहीं था, तो हम एक ही फॉर्मूला बनता है हॉरिजॉन्टल के केस में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, वो यूज किया तो आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट में he was asking you to calculate the vertical component of the velocity of the ball as it hits the ground. So अब आपके पास देखो, जब बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है तो जो टाइम हॉरिजॉन्टल के लिए लगा है सेम टाइम उसे वर्टिकल के लिए भी लगता है। तो ये जो टाइम है, ये आपने, अब हमें टाइम पता लग गया था। एक्सेलरेशन हमें पता है 9.81, तो मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो है क्योंकि इनिशियली जब आप बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हो तो उसकी इनिशियल वर्टिकल स्पीड जीरो होती है। और वर्टिकल के केस में, since the air resistance is negligible, so its acceleration will be 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई 9.81, टी हमने पुट किया तो फाइनल वर्टिकल स्पीड आ गई। अब मैंने आपसे ये कहा, अगर वो आपसे ये पूछ लेता है कि कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम विच द बॉल इज थ्रोन, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो आप S इज इक्वल टू यू टी भी यूज कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS भी इस्तेमाल हो सकता है। U की जगह 0, T इज 0.367 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज 9.81, T की जगह 0.367 का स्क्वायर, ये तो पूरा जीरो हो गया, 0.5 इंटू 9.81 इंटू 0.367 टाइम 0.367, तो ये आ जाता है 0.66 मीटर। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, 0.660 आता है आगे, 0.661 आ रहा है, तो इफ यू राउंडेड ऑफ तो 0.66 मीटर ही बनता है। So this is how you calculate the height of the ball above the ground, which is 0.661 मीटर। अच्छा, अगर वो आपसे ये कह देता है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम स्टार्ट टिल इट रीचेस द ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो अगर एक पार्ट और वो ये पूछते हैं, कैलकुलेट displacement of ball from start till it reaches the ground. So that can be another possible question जो एग्जाम में आए हुए हैं, start till it
reaches the ground. Okay. So now what displacement का मतलब होता है shortest distance between the 2 points. So this is your displacement. ये आपकी start position है और ये जब वो ground पे hit करता है. ठीक है. तो बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. लेट मी कॉल इट एक्स. तो यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.661 का स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.661 स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो यहाँ पे हमने पाइथागोरस अप्लाई कर देना है एंड यू कैन इजीली गेट द वैल्यू. सो 0.661 स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1.92 मीटर. सो फाइनल आंसर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ कर दोगे तो वो 1.9 मीटर्स हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर टू मोर पॉसिबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं. अच्छा. डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड. ओके. सो जब ये बॉल ग्राउंड को हिट करता है तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मांग रहा है कि जब बॉल देखो फाइनल वर्टिकल स्पीड हमारे पास आई थी 3.67 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल स्पीड थी 4.9 मीटर पर सेकेंड. अब रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए आप एक पैरेललोग्राम सा बना लो इसका. अगर ये 3.67 है तो दिस विल आल्सो बी 3.67. तो रिजल्टेंट ये है. ये 90 डिग्री है. दिस इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी. इसको मैं y कह देता हूं. y इज योर रिजल्टेंट वेलोसिटी. और उसने एंगल मांगा हुआ है विद हॉरिजॉन्टल. मतलब ये एंगल थीटा निकालना है. अब y निकालने के लिए अगेन वी विल यूज पाइथागोरस. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3.67 का स्क्वायर प्लस 4.9 का स्क्वायर. You take square root on both sides. Just put the entire expression on calculator and you'll get the final value for it, which is 6.12 meter per second. So this is how we calculate the final resultant speed. अब एंगल निकालने के लिए हम tan यूज कर लेंगे. tan थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस. सो ये tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा. सो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा 3.67 और बेस है इसकी 4.9. तो अब आप tan इनवर्स 3.67 डिवाइडेड बाय 4.9 तो ये 36.8 डिग्रीज. तो इसको 37 आ गया और रिजल्टेंट स्पीड है 6.1 मीटर पर सेकेंड. सो बेटा ये मैक्सिमम पॉसिबल मतलब क्वेश्चन है. ये 3 मार्क का ये. ठीक है. हाइट निकालने को कह देता तो दैट वुड हैव बीन फॉर 2 मार्क. और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फर्दर 1 मार्क का. तो ये आपके पास हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है. Now let's just quickly talk about how to do the full projectile motion.